محترم ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی. پرواز ٹی وی خبر نامے میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے. تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے ہیں آج کے حدیث مبارکہ سے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ کچھ دیہاتی لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا کرتے اور یہ پوچھا کرتے تھے کہ قیامت کب آئے گی. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سن کر اس بچے کی طرف دیکھتے جو ان پوچھنے والوں کے ساتھ ہوتا تھا اور پھر فرماتے کہ اگر یہ بچہ زندہ رہا تو یہ بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے نہیں پائے گا کہ تم پر تمہاری قیامت ہو جائے گی. تشریح: اگر یہ بچہ زندہ رہا اس کا مطلب یہ تھا کہ اس بچہ کے بڑھاپے کی عمر تک پہنچنے سے پہلے تم سب وفات پا جاؤ گے. اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا مذکورہ مدت کے عرصہ کے بعد ایک نسل کے خاتمہ اور ایک قرن یعنی عہد کے اختتام پذیر ہو جانے کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ ایک پوری نسل کا ختم ہو جانا اور ایک زمانہ کا اپنی مدت کو پہنچ کر اختتام پذیر ہو جانا ایک طرح سے قیامت ہی ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حقیقت کو ساتھ تم تمہاری قیامت سے تعبیر فرمایا. اس حدیث کے سلسلہ میں زیادہ واضح بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ پوچھنے والوں نے قیامت کبریٰ کے بارے میں پوچھا، اور چونکہ ان کا یہ سوال ایسا تھا جس کا صحیح جواب دینا ممکن ہی نہیں تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکیمانہ اسلوب آغاز سے قبل نظر ڈالیں گے آج کی سرخیوں پر. ڈاکٹر امبیڈکر کے ذریعے فراہم کردہ حقوق کی حفاظت ہر ایک کی ذمہ داری. قبائلی خواتین و مردوں کو نہ صرف سیاسی میدان بلکہ معاشرے کے تمام شعبوں میں ایک خاص مقام حاصل. ضلع انچارج وزیر سیتک کا. عوام کے صحت کی ذمہ داری میڈیکل عہدیداران پر عائد ہوتی ہے. وبائی امراض پر قابو پانے اور تمام اقسام کے ادویات دستیاب رکھنے ضلع کلکٹر نے دی ہدایت. ماکلور منڈل کا کیا دورہ. پسماندہ طبقات کو سیاسی طور پر با اختیار بنانے 42% تحفظات کے خصوص میں جدوجہد. بی سی بل کی منظوری کے لیے ریاستی مرکزی حکومتوں پر دباؤ ڈالنا وقت کا تقاضا. ایم ایل سی کے کویتا. اب خبریں تفصیل سے. آدیواسی ڈاکٹر امبیڈکر کے ذریعے فراہم کردہ حقوق کی حفاظت کریں. قبائلی خواتین اور مردوں کو نہ صرف سیاسی میدان بلکہ معاشرے کے تمام شعبوں میں اپنے لیے ایک خاص مقام حاصل کرنا چاہیے. ریاستی پنچایت راج کے وزیر اور ضلع انچارج وزیر سیتک کا نے سمیلن سے کیا خطاب. نظام آباد شہر کے ہوٹل ہریتا ان میں 3 روزہ تلنگانہ آدیواسی کانگریس بنیادی کاریکرتا سمیلن منعقد ہوا. اس موقع پر ریاستی پنچایت راج کے وزیر اور ضلع انچارج وزیر سیتکا کے ہمراہ ریاستی حکومت کے مشیر محمد علی شبیر، ایم ایل اے سدرشن ریڈی، ڈاکٹر بھوپت ریڈی اور دیگر نے پروگرام میں حصہ لیا. اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر سیتکا نے کہا کہ تمام آدیواسیوں کو آئین کے معمار بابا صاحب امبیڈکر کے فراہم کردہ حقوق کی حفاظت کرتے ہوئے تمام شعبوں میں سبقت حاصل کرنی چاہیے، تبھی ہمیں سماج میں پہچان ملے گی. انہوں نے کہا کہ آدیواسی خواتین اور مردوں کو نہ صرف سیاسی میدان میں بلکہ سماج کے تمام شعبوں میں اپنے لیے ایک خاص مقام حاصل کرنا چاہیے، اور کہا کہ تمام ذاتوں کی طرح قبائلیوں کو بھی آگے آنا چاہیے اور ترقی میں اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. بعد ازاں حکومت کے مشیر محمد علی شبیر نے کہا کہ کانگریس حکومت قبائلیوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے انتھک محنت کر رہی. انہوں نے کہا کہ ان کی حکومت کے دور میں ان کی حکومت کا بنیادی مقصد ریاست میں تمام ذاتوں اور مذاہب سمیت سب کے لیے برابری کو یقینی بنانا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ قبائلیوں نے پہلے کے برعکس اب تمام شعبوں میں ترقی کی ہے. ఈ సమాజాన్ని మరి 4
అప్పర్ బ్రాహ్మణ్స్ నెత్తి నుంచి వచ్చారు, ఇంకోరు క్షత్రియులు భుజం నుంచి వచ్చారు, రాజులు, ఇట్లా రకరకాలుగా 4 విభాగాలు విభజించి ఆనాడు మనుధర్మం ఉండేది. దానికి పోటీగా అందరు ఈక్వలే, అందరికి సమానత్వం ఉండాలి, సమాన హక్కులు ఉండాలి అని చెప్పేది భారత రాజ్యాంగం. కాబట్టి ఇవాళ మరి ఒక మతం పేరుతోటి, ఒక ధర్మం పేరుతోటి కులాలను ఇంకా అణచివేసే, తెగలు ఇంకా తొక్కిపెట్టేటువంటి ఆలోచన కేంద్రంలో ఉన్న బీజేపీ ప్రభుత్వం చేస్తుంది. మొన్న మీకు అందరూ తెలుసు, అంబేద్కర్ 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 అంటే ఏమొస్తుంది, దేవుని నచ్చితేనైనా మీకు స్వర్గం వస్తుందన్న. చచ్చిపోయిన తర్వాత స్వర్గం వస్తుందో రాదో నాకు తెలియదు, ఎవరి నమ్మకం వాళ్ళకు ఉంటుంది. దేవుణ్ణి గుడిలో పెట్టి పూజించాలి, గుండెల్లో పెట్టుకోవాలి. కానీ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చినటువంటి రాజ్యాంగం అమలైతే ఇగో ఇలా సీతక్కలాగా మాత్రం ఒక మారుమూల గూడాల నుంచి, తండల నుంచి, పల్లెల నుంచి వచ్చేటువంటి బిడ్డలు ఈరోజు ఒక మంత్రిగా, లేదా ఒక చైర్మన్ గా, లేదా అక్కడ ప్రొఫెసర్ గా, ముఖ్యమంత్రి గారు ఇక్కడ ఎంతో మంది చదువుకున్నారంటే రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కు, అది సమానత్వం దిశగా తీసుకెళ్లే హక్కు. నా జీవితంలో రకరకాల మార్పులు వచ్చి అయినా కూడా మళ్ళీ భారత రాజ్యాంగం ఇచ్చినటువంటి హక్కులతోటి నేను చదువుకొని ఒక లాయర్ గా పనిచేసి, ఒకసారి ఎమ్మెల్యేగా 3 సార్లు గెలిచి ఈ రోజు మంత్రిగా అయ్యే అవకాశం వచ్చిందంటే భారత రాజ్యాంగం, అంబేద్కర్ గారు రచించిన రాజ్యాంగం, ఆనాడు మన నెహ్రూ గారి ఆధ్వర్యంలో ఆమోదింప చేయబడ్డటువంటి ఈ రాజ్యాంగం మూలంగా నేను ఈరోజు ఇక్కడ నిలబడగలిగిన. आवाम की सेहत की जिम्मेदारी मेडिकल अफसरान पर आयद होती है। वबाई अमराज पर काबू पाने और तमाम अक़साम की अद्वियात दस्तयाब रखने जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। जिला कलेक्टर का माकलूर मंडल में बड़े पैमाने पर दौरे के दौरान ब्रांच लाइब्रेरी बंद करने पर जिला कलेक्टर ने बरहमी का किया इजहार। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने माकलूर मंडल मुस्तकर में बड़े पैमाने पर मुआयना किया। कलेक्टर ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर, आंगनवाड़ी सेंटर, मंडल एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर, एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्टिलाइजर गोदाम, ब्रांच लाइब्रेरी, सब पोस्ट ऑफिस और दीगर दफातर का अचानक मुआयना किया। उन्होंने ग्राम पंचायत सेक्रेटरी से इंदिरा मकानात की तरक्की के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर ने सबसे पहले माकलूर PHC का दौरा किया। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अवाम की सेहत की हिफाजत करना सरकारी मेडिकल अफसरान की जिम्मेदारी है। कलेक्टर ने ओपी रजिस्ट्रेशन काउंटर, लैब, दाखिल मरीज वार्ड, वैक्सीनेशन रूम और दीगर महकमों का मुआयना किया। उन्होंने मेडिकल ऑफिसर के हमरा ड्यूटी पर मौजूद अमले की हाजिरी चेक की। उन्होंने अवाम को फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने सवाल किया कि CBP, शुगर, ब्लड प्रेशर जैसे अमराज की तशखीस के लिए औसतन रोजाना कितने टेस्ट किए जाते हैं और उनके नताइज कैसे बताए जाते हैं। उन्होंने ब्लड टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तफसीलात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड का जायजा लिया और कई तजावीज़ दी। कलेक्टर ने हुक्म दिया कि सरकारी स्कूलों और हॉस्टलों में तलबा के हेल्थ चेकअप के दौरान बच्चों के खून के टेस्ट भी किए जाए और PHCs में टेस्ट कराया जाए और नताइज की बुनियाद पर जरूरतमंद तलबा को बेहतर इलाज फ्राहम किया जाए और इस बात को यकीनी बनाया जाए कि वैक्सीनेशन और TB की तशखीस के टेस्ट 100% किए जाए। उन्होंने मशवरा दिया कि वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए और सांप के काटने की दवा और दीगर तमाम अक़साम की अद्वियात दस्तयाब हो। डॉक्टर्स और अमला हर वक्त दस्तयाब रहे ताकि अवाम को बेहतर तिब्बी खिदमात फ्राहम हो। उन्होंने मेडिकल ऑफिसर को हिदायत दी कि वो PHC और इसके दायरे इख्तियार में आने वाले 6 ज़ेली मराकिज़ की जानिब से फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात की निगरानी करें। उन्होंने कहा कि जचा वो बच्चे की अमवात को रोकने के लिए तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। बाद में कलेक्टर ने आंगनवाड़ी सेंटर का दौरा किया और दस्तयाब सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने तजवीज़ दी कि बच्चों को ग़िज़ात से भरपूर खुराक फ्राहम की जाए और सेंटर का मुनासिब इंतजाम किया जाए। जब कलेक्टर ने आंगनवाड़ी सेंटर से मुतसिल MEO ऑफिस का अचानक दौरा किया तो उन्होंने देखा कि अमले के कई अरकान ड्यूटी से गैर हाजिर है और हाजिरी की फहरिस्त चेक की। जब MEO इंचार्ज सत्यनारायण से अमले की गैर हाजिरी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वो छुट्टी पर है। वहां से कलेक्टर ने प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी के खाद गोदाम का दौरा किया और खाद के जखीरे का मुआयना किया।
انہوں نے دریافت کیا کہ کیا کسانوں کی ضرورت کے مطابق مناسب کھاد فراہم کی جا رہی۔ کلکٹر نے گودام میں کھاد کے اسٹاک کی تفصیلات حاصل کی۔ اس دوران کلکٹر نے اس بات پر برہمی کا اظہار کیا کہ جب کلکٹر نے برانچ لائبریری کا دورہ کیا تو وہ بند تھی، تو انہوں نے ڈسٹرکٹ لائبریری سیکرٹری سے فون پر رابطہ کیا اور سوال کیا کہ لائبریری کو تالا کیوں لگایا گیا۔ انہوں نے حکم دیا کہ ضلع کی 24 لائبریریوں کی نگرانی کی جائے تاکہ اس بات کو یقینی بنائے کہ وہ وقت کے اصول پر عمل کرے اور اب سے روزانہ کی رپورٹ انہیں بھیجے۔ کلکٹر نے لائبریری کا افتتاح کیا اور مسابقتی امتحانات سے متعلق دستیاب اخبارات، کتابیں، رسائل اور مواد کا معائنہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ تمام لائبریریاں روزانہ صبح 8 بجے سے 11 بجے تک اور دوپہر 3 بجے سے شام 6 بجے تک کھلی رہے۔ بعد ازاں کلکٹر نے سب پوسٹ آفس کا دورہ کیا اور امدادی پینشن کی تقسیم کے بارے میں دریافت کیا۔ ఇవాళ రావాలి, లేట్ చేసేది రేపటి నుండి బంద్. సరే రేపు వస్తాను. कांग्रेस तेलंगाना रियासती उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने रियासती कांग्रेस पार्टी कैडर में जोश व खरोश पैदा करने और पार्टी को मजबूत करने के इक़दाम किए। मीनाक्षी नटराजन हुकूमत की जानिब से नाफिज की जा रही स्कीमों को अवाम तक पहुंचाने के लिए एक पद यात्रा भी करेगी। कांग्रेस तेलंगाना रियासती उमूर की इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने पदयात्रा का आगाज किया। उन्होंने ये फैसला रियासत के कैडर में जोश व खरोश पैदा करने और पार्टी को मजबूत करने के लिए लिया। इसका शेड्यूल पार्टी जराये ने जारी कर दिया। उनकी पदयात्रा रंगारेड्डी, मेदक, निजामाबाद, आदिलाबाद, करीमनगर और वरंगल अजला का अहाता करेंगी। मीनाक्षी नटराजन की पदयात्रा रियासत के मुख्तलिफ हलकों में 1 हफ्ते तक मुनक़िद की जाएंगी। यात्रा हर हलके में 8 से 10 किलोमीटर का फासला तय करेंगी। पदयात्रा के हिस्से के तौर पर श्रमदानम प्रोग्राम भी मुनक़िद किए जाएंगे। पदयात्रा इस माह की 31 तारीख को विकाराबाद जिले से शुरू होगी। ये 21 तारीख को भी वहां जारी रहेंगी। पदयात्रा 2 तारीख को जिला मेदक, 3 तारीख को निजामाबाद जिले के आरमूर, 4 और 5 तारीख को आदिलाबाद जिले के खानापुर, 6 को करीमनगर और वरंगल जिले के वरदनापेट जैसे हलकों में मुनक़िद होगी। मीनाक्षी नटराजन पार्टी कैडर में जोश व खरोश पैदा करने के लिए पद यात्रा का एहतमाम करेंगी। मीनाक्षी नटराजन पार्टी कैडर में जोश व खरोश पैदा करने के लिए पद यात्रा का एहतमाम करेंगी। वो तेलंगाना हुकूमत की जानिब से नाफिज करदा फलाई स्कीमात को भी अवाम तक पहुंचाएंगी। ऐसा लगता है कि ये फैसला पार्टी के अंदरूनी मसाइल के हल के लिए किया गया। मालूम हुआ है कि कांग्रेस पार्टी को हालिया दिनों में रियासत में कई चैलेंजों का सामना रहा, खासतौर पर बीआरएस और बीजेपी जैसी अपोजिशन पार्टियों से। इस तनाज़ुर में पदयात्रा के इनेकाद और पार्टी में अवाम का एतमाद बढ़ाने की उम्मीद है। ऐसा भी लगता है कि यात्रा कारकुनों में इत्तेहाद और जोश बढ़ाने के लिए मुनक़िद की जा रही। किसानों के कर्ज माफी और फलाई स्कीमों को लागू किया जा रहा, जिसकी तवक्को अवाम तक नहीं पहुंची। इसके अलावा ये भी तनकीद की जा रही कि लीडरों और कारकुनों ने जात की गिनती के मामले को तवक्को के मुताबिक फील्ड लेवल तक नहीं ले गया। इस तनाज़ुर में बताया जाता है कि पदयात्रा ये सोचकर शुरू की गई, पदयात्रा के जरिए अवाम से बराह रास्त बातचीत करने का मौका मिलेगा। पसमानदा तबकात को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने 42% तहफ़्फ़ुज़ात के खुसूस में जद्दोजहद। बीसी बिल की मंजूरी के लिए रियासती और मरकजी हुकूमतों पर दबाव डालना वक्त का तकाज़ा। 4 ta 7 अगस्त 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करने का ऐलान। सुमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में के कविता की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सदर तेलंगाना जागृति व रुकने कानून साज कौंसिल बीआरएस कल्वाकुंटला कविता ने कहा कि पसमानदा तबकात को 42% रिजर्वेशन दिलाने की जद्दोजहद का वाहिद मकसद उन्हें सियासी इख्तियारात दिलाना है। वो प्रेस क्लब सुमाजीगुड़ा में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। कविता ने कहा कि रियासती और मरकजी हुकूमतों पर दबाव डालकर बीसी बिल को मंजूर करवाना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने याद दिलाया कि साल 2018 में पंचायत राज तरमीमी कानून में
तब्दीली के लिए तेलंगाना जागृति ने मुतालबा किया था। इसी के नतीजे में रियासती हुकूमत ने ऑर्डिनेंस जारी किया था। उन्होंने सवाल किया कि जब तमिलनाडु की हुकूमत ने गवर्नर की ताखीर पर अदालत से रुजू होकर फैसला हासिल किया तो तेलंगाना हुकूमत गवर्नर के पास ज़ेर इल्तिवा बिलों पर अदालत से रुजू क्यों नहीं हो रही। सदर तेलंगाना जागृति कल्वाकुंटला कविता ने कांग्रेस और बीजेपी के दरमियान खुफिया मफाहिमत का इल्जाम आयद किया और कहा कि इसी वजह से रेवंत रेड्डी हुकूमत अदालत से रुजू होने से गुरेज कर रही। अगर वाकई रियासती हुकूमत मरकजी हुकूमत पर दबाव डालना चाहती है तो उसे सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु हुकूमत जब गवर्नर और सदर जमहूरिया के पास ज़ेर इल्तिवा बिलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू हुई तो वहां से एक मुस्बित फैसला हासिल हुआ, मगर तेलंगाना हुकूमत इस राह पर क्यों नहीं जा रही। इसके बरक्स कांग्रेस के रहनुमा पूनम प्रभाकर एमएलएस और एमएलसीज को धरने में शिरकत की दावत दे रहे। उन्होंने तंजिया अंदाज में पूछा कि क्या ये कोई 17 भोजनम इज्तिमाई ज़ियाफत है। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत सरकारी सतह पर कुल जमाती वफद को दहली ले जाए और तमाम जमातों के अराकीन असम्बली और अराकीन कानूनसाज कौंसिल को मकतूब रवाना करके दहली में एहतजाज के लिए मदऊ करे। कविता ने कहा कि पूनम प्रभाकर गैर जिम्मेदाराना बयानात दे रहे और कांग्रेस हुकूमत सिर्फ बिहार असम्बली इंतखाबात के तनासिर में सियासी ड्रामा कर रही। उन्होंने ऐलान किया कि वो तेलंगाना जागृति की जानिब से 4, 5, 6 और 7 अगस्त को 72 घंटों की भूख हड़ताल मुनज़्ज़म करेंगी। 4 अगस्त को सुबह 11 बजे से भूख हड़ताल का आगाज किया जाएगा और ये 7 अगस्त को सुबह 11 बजे तक जारी रहेंगी। उन्होंने कहा कि वो इस एहतजाज के लिए हुकूमत से बाकायदा इजाजत तलब करेंगी और अगर इजाजत ना मिली तो वो जहां भी होंगी वहीं बैठकर भूख हड़ताल शुरू करेंगी। ఒక నిజమైనటువంటి నిబద్ధతతో కూడినటువంటి 72 గంటల నిరాహార దీక్షను నేను చేయబోతా ఉన్నాను హైదరాబాద్లో 4, 5, 6 తారీఖున ఆగస్టు 4, 5, 6 తారీఖున నేను ఇదివరకు ఎట్లా అయితే అంబేద్కర్ విగ్రహ సాధన కోసం 72 గంటల నిరాహార దీక్ష చేశానో బీసీ బిల్లు సాధన కోసం కూడా రాష్ట్ర కేంద్ర ప్రభుత్వాలపై ఒత్తిడి పెంచడానికి మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బీసీ బిడ్డలకు ఎంత అవసరం ఉంది బీసీ బిల్లు అనేటటువంటి అంశాలని ప్రపంచానికి తెలియజెప్పడానికి తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలుగా తెలంగాణ బిడ్డగా ఒక సోదరిగా నేను నిరాహార దీక్ష 72 గంటలది 4, 5, 6 ఆగస్టు నాడు చేయబోతా ఉన్నాను। దీనికి సంబంధించి మేము ప్రభుత్వానికి కూడా ఇమీడియట్గా పర్మిషన్ కోసం పెట్టుకుంటాం। వాళ్ళు పర్మిషన్ ఇస్తే మంచిది, ఇవ్వకపోతే ఎక్కడ వీలైతే అక్కడ కూర్చొని 72 గంటలు మాత్రం ఖచ్చితంగా దీక్ష చేస్తాం। నాకున్న కాన్ఫిడెన్స్, నాకున్న విశ్వాసం ఏంటంటే అంబేద్కర్ విగ్రహం సాధించడానికి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో 72 గంటలు నేను నిరాహార దీక్ష చేసిన। ఆ తర్వాత అనౌన్స్మెంట్ వచ్చింది, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు ఆనాడు ఒత్తిడికి తలొగ్గి అంబేద్కర్ విగ్రహాన్ని అసెంబ్లీలో పెట్టడం జరిగింది। అదే పంతాను, అదే గాంధేయవాదాన్ని, అదే ప్రజాస్వామిక పరిధిలో మేము నిరసన తెలియజేస్తాం, అవసరాన్ని తెలియజేస్తాం। బీసీ బిల్లు ఎందుకు రావాలన్న అవసరాన్ని, మా నిబద్ధతను ప్రపంచానికి చాటుతామని ఈ సందర్భంగా మీ అందరికీ కూడా నేను తెలియజేస్తూ जिला भर के सरकारी स्कूलों और हॉस्टल की इमारतों की मरम्मत की जाए और अवामी नुमाइंदे सरकारी स्कूल का दौरा करें। पीडीएसयू ने किया मुतालिबा। पीडीएसयू जिला जनरल सेक्रेटरी जे राजेश्वर ने मुतालिबा किया कि निजामाबाद जिले में खस्ता हाल सरकारी स्कूलों और तलबा के इंतजामी हॉस्टल की इमारतों की मरम्मत की जाए। शहर के एनआर भवन में मुनाकिदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में खस्ता हाल सरकारी स्कूलों और सरकारी हॉस्टलों में तलबा को बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा और बारिश के मौसम की वजह से तलबा मच्छरों की वजह से अमराज में मुब्तला हो रहे। उन्होंने कहा कि तमाम हॉस्टलों और स्कूलों की खिड़कियों पर मच्छरदानी लगाए जाए, हॉस्टल्स में एएनएम्स की तैनाती की जाए, तलबा को मेनू के मुताबिक बेहतर ग़िज़ा फ्राहम की जाए ताकि फूड पॉइजनिंग के वाक़यात दोबारा ना हो और मुकामी वार्डन्स तलबा को दस्तयाब हो। उन्होंने कहा कि रैगिंग को रोका जाए और मुकामी अवामी नुमाइंदों को वक्तन फ़ौक्तन हॉस्टल्स का दौरा करना चाहिए। నేపథ్యంలో మొత్తం కూడా చాలా హాస్టల్స్ శిథిల వ్యవస్థలో ఉన్నాయి। అదేవిధంగా ప్రభుత్వ స్కూల్స్ కూడా అనేకం కూడా శిథిల వ్యవస్థలో ఉన్నాయి।
వర్షాకాలం కూలిపోయే పరిస్థితి ఉంది. అదేవిధంగా విద్యార్థులకు ఈరోజు చదువుకు ఆటంకం కలుగుతుంది. హాస్టల్లో ఉండే విద్యార్థులకు కూడా ఈరోజు ఆటంకం కలిగే పరిస్థితి ఉంటుంది. అదేవిధంగా అక్కడ ఉన్నటువంటి పరిశుభ్రాలను కూడా ఈరోజు అక్కడ శుభ్రంగా ఉంచాలని కోరుతున్నాం. ఎందుకంటే వర్షాకాలంలో దోమలు అదేవిధంగా ఇతర పురుగులు ఈరోజు పుట్టి ఈరోజు విద్యార్థులు అనారోగ్యం గురయ్యే పరిస్థితి ఉన్నది. అదేవిధంగా విషజ్వరాలు అవన్నీ కూడా తరుణమిస్తున్న కాలంలో మొత్తం కూడా హాస్టల్స్లో ఏఎన్ఎంను ఈరోజు నియమించాల్సిన అవసరం ఉన్నది. ఏదైతే శిథిల వ్యవస్థకు చేరినటువంటి హాస్టల్స్ కానీ స్కూల్స్ కానీ ఆ బొనాలు వెంటనే అక్కడ స్థానిక ఎమ్మెల్యేలు జిల్లా విద్యాశాఖ అధికారులు అక్కడ సందర్శించి అక్కడ వాటిని మరమ్మతులు చేయించాలని కోరుతున్నాం. निजामाबाद यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन तलबा को तालिबे इल्मी के मरहले से समाजी जिम्मेदारी को बेदार करने के लिए आगाह करे, जो कि काबिले सताइश है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पी अशोक का बयान। इंदौर यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के दफ्तर में डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पी अशोक और ट्रस्मा एग्जीक्यूटिव कमेटी ने निजामाबाद यूथ रजाकार सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए चलाए जाने वाले सर्विस प्रोग्रामों के बारे में तलबा में बेदारी पैदा करने के लिए सोशल सर्विस फील्ड वर्क प्रोजेक्ट से मुतालिक पोस्टरों की रस्म इजराई अमल में लाई। बादशाह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर पी अशोक ने खिताब किया और कहा कि निजामाबाद यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के जरिए किए गए प्रोग्राम सभी के लिए मुतासिर कुन है। उन्होंने कहा कि स्कूल के तलबा को बचपन से ही खिदमत के रास्ते की जानिब रहनुमाई के लिए आगाही प्रोग्राम फ्राहम करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस तरह के प्रोग्रामों से तलबा बाशऊर होगी। बादशाह ट्रस्मा एग्जीक्यूटिव कमेटी के रुकन जया सिम्हा गौड़ ने कहा कि ऐसे प्रोग्रामों की वजह से तलबा की हौसला अफजाई होगी। इसी तरह ट्रस्मा जिला सदर ने कहा कि इस तरह के खिदमती प्रोग्रामों के जरिए तलबा में बेदारी पैदा करने से तलबा बड़े होकर एक बेहतर शहरी बनेंगे और सही रास्ते की तरफ समाजी जिम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे। इस प्रोग्राम में निजामाबाद यूथ वॉलंटियर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन के बानी सदर साई बाबू, मिमरान, गंगाधर, संतोष दीगर भी मौजूद थे। వారికి అన్నదానం చేయడము, ఎవరైతే అభాగ్యులు ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ గుర్తించి వాళ్ళందరికీ మంచి జీవన శైలిని కల్పించడానికి ప్రయత్నం చేయడము, గోవులను సంరక్షించడము, అనాథ శవాలను గుర్తించి ఖననం చేయడము, ఇవన్నీ సులభమైనటువంటి పనులు కావు. ఎంతో సహనము, ఓపిక, అంత మంచి సద్బుద్ధితో చేసేటటువంటి అంశాలను మనమందరము కూడా గుర్తుంచుకొని అభినందించాల్సినటువంటి అంశం. इतुंडा गांव का सॉफ्टवेयर मुलाजिम हरि कृष्णा गुज़िश्ता 25 सालों से अमेरिका में मुकीम था। हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से हरि कृष्णा की अचानक मौत हो गई, जिस पर गांव वालों ने गहरे गम का इजहार किया। कोडगिर मंडल के इतुंडा कैंप गांव के सॉफ्टवेयर मुलाजिम हरि कृष्णा की हाल ही में अमेरिका रियासत में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। रिश्तेदारों की जानिब से दी गई तफसीलात दर्ज झैल है। हरि कृष्णा इतुंडा कैंप से ताल्लुक रखने वाले डी राधा कृष्णा सरस्वती का दूसरा बेटा है। उनकी उम्र 49 साल है और वो 25 साल कबल सॉफ्टवेयर का काम करते हुए अमेरिका में मुकीम हुए थे। हरि कृष्णा को बीवी और 2 बेटियां हैं। उन्होंने अपने दुख का इजहार किया कि हाल ही में तफरीही वीकेंड के हिस्से के तौर पर अपने दोस्तों और खानदान के अफराद के साथ कश्ती में सफर कर रहे थे कि अचानक दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई। हरि कृष्णा का सबके साथ दोस्ताना माहौल था और वो नर्म मिजाज के थे। इख्तिताम से कबल एक नजर डालिए आज की सुर्खियों पर। डॉक्टर अंबेडकर के जरिए फ्राहम करदा हुकूक की हिफाजत हर एक की जिम्मेदारी। कबायली खवातीन व मर्दों को न सिर्फ सियासी मैदान बल्कि मुआशरे के तमाम शोबों में एक खास मकाम हासिल। जिला इंचार्ज वजीर सीतक का।
अवाम के सेहत की जिम्मेदारी मेडिकल ओहदेदारान पर आयद होती है। वबाई अमराज पर काबू पाने और तमाम अक़साम के अद्वियात दस्तयाब रखने जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। माकलूर मंडल का क्या दौरा। पसमानदा तबकात को सियासी तौर पर बाइख्तियार बनाने 42% तहफ़्फ़ुज़ात के खुसूस में जदोजहद। BC बिल की मंजूरी के लिए रियासती मरकजी हुकूमतों पर दबाव डालना वक्त का तकाज़ा। MLC के कविता। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़ई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 955 35 21111। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।